چاہتا ہے کہ اس پاک کلام کو سنیں جو زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو زندگیوں میں انقلاب لانے کی قدرت رکھتا ہے، بیدار کرنے کی، ٹرانسفارم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس کے وسیلہ سے یسوع المسیح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ خداوند کی خادمہ پاسٹر اینجل کو ہم ویلکم کرتے ہیں جو آج پاک کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گی۔ جی پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو abundantly. Now it's your turn. Praise hallelujah. Thank you so much, Reverend Sam. سب سے پہلے تو سب کو جے مسیح کی پریز دی لارڈ، مسیح کا فضل، اطمینان اور تسلی ہمیشہ آپ سب کی زندگی میں بنا رہے، اور اتنا پیار اور وارملی ویلکم کے لیے بھی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں جتنے ہمارے خداوند کے رسپیکٹڈ خادمین یہاں پر موجود ہیں۔ پاسٹر اختر ہیں، پاسٹر عمران ہیں، لیو ہارون بھائی ہیں، پاسٹر قادش ہیں، اور جتنے بھی نیچے بیٹھ کے بھی بہت بڑے نام نیچے مجھے نظر آ رہے ہیں، سب کے لیے، بہن اور بھائیوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آپ یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ ہم سب آج مل جل کر خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں، اپنی تربیت پائیں، نصیحت کو پائیں، تو یہ ایک خوبصورت بات ہے۔ ہاللیلویا۔ ریورنڈ سیم کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور میں خداوند کے پاک روح کی شکر گزاری کر رہی تھی بیکاز جب وہ کچھ ایسی باتیں شیئر کر رہے تھے اور میں کہہ رہی تھی اپنے آپ سے کہ 50% میسیج از آلریڈی ڈیلیورڈ۔ ہاللیلویا۔ تو دیٹس اے کنفرمیشن کہ خداوند چاہتا ہے کہ اسی ٹاپک کے اوپر بات کی جائے۔ پریز جیسس۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ دنیاوی لوگ کہتے ہیں کہ لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا کلیہ بتانے والی ہوں، ٹرک دینے والی ہوں، یا ایسی ٹپ دینے والی ہوں جس کی وجہ سے آپ جو ہے چاہے کیسی بھی سچویشن میں ہیں، کیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں، ٹرامے سے گزر رہے ہیں، سیڈنیس کا شکار ہیں، بروکنیس کا شکار ہیں، ہولی اسپرٹ ول کیری یو تھرو دوز سچویشنز۔ ہاللیلویا۔ دنوں پہلے میں جب شراز بھائی کی لائف پہ تھی، وہاں پر ہم انٹرسیسر پریئر سیشن کرتے ہیں، اور آل دا سڈن انہوں نے مجھے کہا کہ سسٹر جی کچھ بتائیے گا جو ہے کہ خداوند نے آپ کو کیا کلام دیا، یا آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں جو ہم سب کی نصیحت کے لیے ہو۔ اور وہاں پر میں نے صرف 2 باتیں کی تھیں کہ یہ جو ایک پرستار ہوتا ہے، جو حمد و ثنا کرنے والا ہوتا ہے، ورشپر بھی ہوتا ہے، وہ ایک جنگجو سورما بھی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ابیلٹی بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، اور اسی کو ہم جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا آگے آگے لے کر چلیں گے کہ ہاؤ یہ جو پرستش کرنے والے لوگ ہیں یا حمد و ستائش کرنے والے لوگ ہیں، جو گا کر بھی پرستش کرتے ہیں، ساز بجا کر بھی پرستش کرتے ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ ہم ڈفرنٹ روڈز پہ جاتے ہیں، اور بینگ خادمین جو ہیں وی آبزرو ایوری تھنگ، گو کہ ہم بات نہیں کرتے لیکن ہم آبزرو کرتے ہیں۔ سو آبزرویشن کے بعد ناؤ اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں بھی کہ کیا ہونا چاہیے ان کی زندگی میں، تاکہ ان کی جو پرستش ہے جب وہ کریں تو روح القدس کا نزول ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے، اور لوگ خدا ان کے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ پریز جیسس۔ تو اس آیت سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، فیمس حوالہ ہے، اگر آپ کے پاس اپنی بائبلز ہیں تو ضرور کھولیے گا، نہیں ہے تو نوٹس بنا لیجئے، فون میں نوٹس بنا لیجئے، نیچے کمنٹس کریں تاکہ جو صرف ایز اے وزٹر بھی آ رہے ہیں وہ اس حوالے کو پڑھیں اور برکت کو حاصل کریں۔ ہاللیلویا۔ یوحنا کی انجیل 4 باب کی 23ویں سے 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پریز جیسس۔ تو جب ہم نے
ये चौथे बाब के दरमियान से एक आयत को लेके पढ़ लिया है, तो ये भी ज़रूरी है कि इस पूरे चैप्टर का सियाक भी देखा जाए और सबाक भी देखा जाए। मीन्स कि जो पहले का भी वाक़या है इन आयात से और बाद का भी जो वाक़या है उस पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए, ताकि अच्छे से समझ आ सके सबको। हालेलुया। जितने फॉर यू पे भी हमें सुन रहे हैं, आई होप कि यू विल बी ब्लेस्ड थ्रू दिस मैसेज टुडे। आमीन। तो ये जो चौथा बाब है यूहन्ना की अंजील का, इसमें हमें सामरी औरत का वाक्य मिलता है। और अगर आप चर्च हिस्ट्री को पढ़ें तो शी वॉज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो है फीमेल इवेंजलिस्ट जो है वो सामरी औरत थी। और जो सामरिया का इलाका था यहूदियों के मुताबिक जो है उसे गैर अक़वाम का इलाका कहा जाता था। और ये जो वाक़या पेश हुआ है, क्योंकि मेरी बाइबल पे नोट्स बने हुए, मैं सिर्फ उनको ही हेडलाइंस को पढ़ी हूँ, कि ये जो वाक़या जब पेश आया था तो दोपहर के 12 बजे का टाइम था, जो कन्वर्जेशन बिटवीन जो है सामरी औरत और यीशु मसीह के साथ हो रही है, उनके आपस की जो बातचीत हो रही है। और इस चौथे बाब की एक जो आयत है जो हम ईमानदारों के लिए मोटिवेशन भी है और जिसे हम बड़े अच्छे से अपने जहन नशीन भी करते हैं, कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया। और जो इस बाब का सबाक है उसमें जो एक आयत को मैं मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि जब औरत पर जो है प्रस्तिश का मकाशवा खुल गया है, जो हमारी कुलीदी आयत भी है आज की चौथे बाब की 23वीं से 24वीं आयत, नीचे कमेंट्स में भी लिखा गया है, उस मकाशवे के खुलने के बाद क्या हो जाता है कि वो जो औरत है वो अपनी शर्म को उतार फेंकती है, अपनी शर्मिंदगी को अपने ऊपर से उतार फेंकती है, और वो इस कदर दिलेरी से भर जाती है, उस शहर में वो वापस जाती है और लोगों से कहने लगती है, 29 वर्ष में लिखा है, एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, लेकिन मुमकिन है कि मसीह यही है। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत चैप्टर के लिए, कलाम मुकद्दस में जो हमारी रहनुमाई के लिए ही लिखा गया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए अभी हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि प्रस्तिश भरा जो दिल है वो कैसा होना चाहिए। खुदा बाप जो है मुझ में और आप में, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जितने फारियों पर भी सुन रहे हैं और बाद में भी जब इस मैसेज को सुनेंगे, खुदावंद हम सब के अंदर जो है एक परस्तार का सा दिल तलाश करता है, ताकि हम क्या करें, जिंदगी को पाएं। क्योंकि जो शुरू की आयत हमने पढ़ी हैं, सामरी औरत की कन्वर्सेशन यीशु मसीह के साथ, उसमें यीशु मसीह से यही तो कह रहे हैं कि अगर तू इस पानी से पीती तो कभी ना मरेगी। तो खुदावंद चाहता है कि हमारे अंदर एक परस्तार का सा दिल आ जाए ताकि हम जिंदगी पा जाएं। अब परस्तार होने से मुराद क्या है? इस इबारत में प्रस्तिश के लिए जो यूनानी लफ्ज़ का तर्जमा किया गया है और नए अहदनामा में ज़्यादातर प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज़ है उसको प्रोसिकोनो, जिसके मायने हैं सामने भूसा देना, एहराजे तहसीन पेश करना, भूसा देने के लिए झुक जाना। हम कह सकते हैं कि ये लफ्ज़ प्रस्तिश की मंजिले मकसूद को बयान करता है और मंजिले मकसूद तक पहुंचने की हालत को भी बयान करता है कि भूसा हराजे तहसीन के लिए पेश कर रहे हैं हम और झुक कर पेश कर रहे हैं। यानी इस अंदाज से प्रस्तिश करें कि हम खुदा की हजूरी में सरहरू और मकबूल ठहर जाएं। हालेलुया। चूमने और भूसा देने की मंजिले मकसूद का मतलब है कि खुदा की हजूरी में आना, यानी खुदा की हजूरी में जो है हम दोस्ती की गर्ज से आ रहे हैं,
जब दोस्ती की गर्ज से आ रहे हैं दरसमीन के, फिर जो है दिखावा नहीं रहेगा. यू आर गोइंग टू मीट विथ योर फ्रेंड. हालेलुया. और ये जो ख्वाहिश है जो बाप हमारे लिए रखता है, वो चाहता है कि हम उसकी कुर्बत से दूर रहकर ही प्रस्तिश ना करें, बल्कि उसके पास आ जाएं. वो दुल्हा और दुल्हन की सी दोस्ती चाहता है हमारे साथ. उसके साथ दोस्ती का मयार हासिल करने का तकाजा ये है कि हम खुशी से उसके आगे झुकें, फोर्सफुली नहीं. बहुत से लोगों को जब प्रस्तिश का कहा जाता है तो वो बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, अभी नहीं, ये नहीं, गला नहीं ठीक, बहुत सी वजूहात आप सुनते ही हैं इन ब्रॉड्स पर. चर्चिस में भी इस तरह का हमें सुनने को मिलता है. लेकिन बाप क्या हमसे चाहता है कि जब हम प्रस्तिश के लिए खुदा के हजूर आए तो खुशी के साथ उसके आगे झुकें. इस झुकने में हर वो चीज पाई जाती है जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करने के लिए जरूरी है. हालेलुया. प्रेज जीसस. नीचे कमेंट लिखे ताकि मुझे पता हो कि आप मैसेज को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, खुदावंद की मदद सराई करते हैं. अब रूह से प्रस्तिश करने का मतलब जो है, महज जो है जहन को माइल करना नहीं है, बल्कि मेरा रूह के साथ खुदा से मुलाकात करना और उसकी इबादत में जाना और रूह से भरना है. मजीद इससे मुराद ये भी है कि खुदा की प्रस्तिश के लिए अपनी मर्जी और खुशी से रूह में आ जाना. इससे ये नतीजा निकलता है कि हमें मन घड़त ख्यालात के गलबा में नहीं आना चाहिए. हालेलुया. बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो इबादत में बैठे होते हैं और उनके जो जहन है वो मुंतशिर सोचों का शिकार हो रहे होते हैं. तरह बतरह की फिक्रें जो हैं उनके दिमागों पर अटैक कर रही होती हैं. लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है खुदावन की हजूरी में आने के लिए? रिक्वायरमेंट क्या है एक अच्छा परस्तार बनने के लिए? कि जब आप खुदावन की हजूरी में बैठे तो मन घड़त ख्यालात आप पर गलबा आवर ना हो. हालेलुया. और खुदा की प्रस्तिश कैसे की जाए ये भी खुदा से पूछना जरूरी है. उसे कहे कि ऐ खुदा बता कि तू कैसे चाहता है कि तेरी प्रस्तिश की जाए, तू क्या ख्वाहिश रखता है. और फिर हमें अपने आप को रूह के हवाले पेश करना चाहिए जब हम प्रस्तिश करें. इस झुकने और सजदे के मायने हैं कि हम अपना फख्र छोड़ देते हैं जब हम प्रेजेंस ऑफ गॉड में आते हैं. हम अपना जो फख्र है, गरूर है, तकब्बुर है, उसको बर्रे के तख्त के आगे लाते हैं जब हम अपने आप को प्रस्तिश के लिए पेश करते हैं, सच्चाई के साथ प्रस्तिश करने के लिए पेश करते हैं. और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करने से मुराद है कि दिल की गहराई से खुदा के आगे झुक जाना. यहाँ सच्चाई के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अलीटियो, जिसका तर्जमा है वफादारी, ईमानदारी, हकीकत. तो आज अपने दिलों को जांचने की ज़रूरत है कि जब हम प्रस्तिश का नजराना खुदावंद के हजूर पेश कर रहे हैं तो आया हमारे अंदर उसके कलाम की वफादारी भी है, ईमानदारी भी है अपनी कॉलिंग के साथ. क्या हम उस हकीकत का इकरार कर रहे हैं कि वाकई जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं वो हाँ के साथ हैं, कभी तब्दील होने की नहीं है. अपने आप को परखने की ज़रूरत है. हालेलुया. और सच्चाई के साथ खुदा की प्रस्तिश करने के मानी को भी हम जानेंगे कि हमारी प्रस्तिश जो है वो सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए. और उस सच्चाई की तस्दीक हम कैसे कर सकते हैं? जितने खादमीन हैं वो तो इस बात को जानते भी हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ जो है रेगुलर चर्च आने वाले हैं, अभी तक फुल टाइम खिदमत में नहीं आए, आपको गीत गाना पसंद है, आपको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना पसंद है, तो आप कैसे अपने आप को परख पाएंगे कि आप सच्चाई के साथ प्रस्तिश कर रहे हैं? और इसकी तस्दीक जो है आप कलामे इलाही से कर पाएंगे. हालेलुया. जब आप
कलाम मुक़द्दस को पढ़ते रहेंगे, कलाम मुक़द्दस को जानते रहेंगे, उसकी सच्चाइयों को जानते रहेंगे, तब जब आप प्रस्तिश करेंगे, देन यू नो कि आप सिर्फ वर्बली जो है सिंगिंग नहीं कर रहे, आप खुदा के कलाम को गा कर बयान कर रहे हैं, कौमों में, उम्मतों में, कबीलों में उसके नाम को जलाल पहुंचाने के लिए। हालेलुया। तो उसकी हजूरी के मायने ये हैं कि हम प्रस्तिश जो है सच्चाई से, वफादारी से और हकीकत में मौजूद रहकर करें। जब हम गाएं और हमारी ज़िंदगी जो है हकीकतन जो है उसके जो कवानीन है, उसने जो असूल तौर तरीका हमें बख्शा है, उसके मुताबिक अपने आप को रिप्रेजेंट करें। मिसाल के तौर पर जो है, जब हम गाते हैं तो हम कहते हैं कि ए यस्सु मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तेरे साथ चलूं। तो देखना ये है कि आया हकीकतन जो है, जो हम अपनी जुबान से कह रहे हैं गाकर, हकीकतन क्या हम अपने दिल में उसका इकरार भी कर रहे हैं? क्या वाकई हमारे अंदर ये आरजू है कि खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो और हम उसकी मर्जी के मुश्ताक हैं? हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू में हम खुदा की मर्जी की तलाश कर रहे हैं और दूसरे लोगों की तरह अपनी ही मनमानी करने को तरजीह नहीं दे रहे। इसमें कोई शक नहीं है, और ये मैं किसी को जज करने के लिए नहीं, बल्कि द मैसेज इज फर्स्ट फॉर मी देन फॉर अदर्स। इसमें कोई शक नहीं कि हम में से कोई भी कामिल नहीं है, मगर हमारे दिल का इरादा क्या है जब हम गाते हैं, कुछ करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं जो हम कहते हैं कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, उसको जलाल देने के लिए कर रहे हैं। क्या उस अमल में हमारे ईमान की वफादारी शामिल है, सच्चाई शामिल है? एक सच्चा परस्तार बनने का मयार यही है कि आपकी जिंदगी जो है वो चलती फिरती गॉस्पेल बन जाए, अंजील की खुशखबरी करने वाली बन जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि कलाम सुनाना सिर्फ पास्टर्स की, एवेंजलिस्ट की जो है, रेफरेंस की जो है जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स हैं बाइबल के, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक जो परस्तार भी है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी को चलती फिरती गॉस्पेल बना दे, बिकॉज आप भी अपने मुंह से जो है वो कलाम को ही गाकर बयान कर रहे हैं। हालेलुया। यही वो नुक्ताए आगाज है जहां से हम बाप की प्रस्तिश के लिए संगीत को इस्तेमाल करते हुए अपने दिल को खुदा के आगे खोलते हैं। खुदा हमारे संगीत का मुश्ताक है, वो हमारी नगमा सराई का मुश्ताक है। वो चाहता है कि हम खूबसूरत प्रस्तिश के नगमात, गुलदस्ते, हम्दो सना उसके हजूर पेश करें। लेकिन हमें चाहिए कि हम जिंदगी में अपनी खुशी से हर दिन उसके लिए वक्फ करें, जो ये साबित करें कि हमारे गीत खुदा के लिए हैं। क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी में डेडिकेशन नहीं है, आपकी जिंदगी में मखसूसियत नहीं है कि जो आवाज खुदा ने आपको दी है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की प्रस्तिश के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए, तब तक आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर ही नहीं सकते। क्योंकि मकाशफा की किताब के मुताबिक तो कहा गया कि तू ना तो सर्द है ना तो गर्म, इसी वजह से मैं तुझे अपने मुंह से निकाल बाहर फेंकने को हूं। तो एक जो परस्तार है, जब वो पुरपट पर, खुदा के मज़बा पर प्रस्तिश की आग लगा रहा है, तो ज़रूर है कि उसकी मखसूसियत होना ज़रूर है। और ये स्टैंडर्ड है एक परस्तार का, और हम खादमीन उसको इसी तरह परखते हैं। जब इन प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों को प्रस्तिश करते सुनते हैं
तो हम सिर्फ उनकी आवाज़ से इम्प्रेस नहीं होते, हम सिर्फ उनके साज के वसीला से इम्प्रेस नहीं होते, बल्कि उस गवाही से, वो शख्सी गवाही जो वो डेली बेसिस पर चलते फिरते अपने मुंह के वसीला से बयान करते हैं और रूह को जीतते हैं उस गवाही के वसीला से। हालेलुया। पास्टर जी मुझे बताइए अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, बट आई बिलीव के पाकरू चाहता है कि मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ बताऊँ। मुझे नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। आमीन। कलाम मुक़द्दस में काइन और हाबिल की कहानी में इसकी एक हमें बहुत ही बेहतरीन मिसाल मिलती है। दोनों जो भाई हैं अपनी मेहनत का पहला फल लेकर खुदा के हजूर प्रस्तिश करने गए हैं। दोनों ने जो है बज़ाहिर एक ही अमल किया है, लेकिन खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को मंजूर किया और काइन की कुर्बानी को नामंजूर किया। काइन जब नजर लेकर आया तो उसने गलत अमल नहीं किया था, लेकिन उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्त थे। पहला यूहन्ना 3 बाब की 12वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने देखा कि हाबिल के रोजमर्रा जिंदगी के काम उसकी प्रस्तिश के ऐन मुताबिक थे। काइन की प्रस्तिश बज़ाहिर तो दीन दराना थी और बज़ाहिर भी ठीक थी, मगर उसके दिल में कुछ और ही बातें थी। हमारे लिए भी यही सूरत हाल है। हम प्रस्तिश के लिए बहुत खूबसूरत गीत गा सकते हैं, बड़ी पुरअसर मौसीकी तरतीब दे सकते हैं, लेकिन जब वही गीत ऐसे लोग गाते हैं जो परस्तार नहीं, तो खुदा की नज़र में उनकी कोई कदरो कीमत नहीं रह जाती। That's the standard of to judge those people through Bible। फिर सिर्फ एक अच्छा गीत ही है, लेकिन प्रस्तिश के लिए उसकी कोई अबदी अहमियत नहीं रहती। बाप सिर्फ प्रस्तिश की तकरीबात का मुतलाशी नहीं है, बल्कि सच्चे परस्तारों की तलाश करता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हालेलुया। और जैसे बिगनिंग में मैंने कहा था कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने से मुराद है कि जब खुदा के बेटे और बेटियां रूह से भरे हुए नगमात गाएं, प्रस्तिश करें, तो आग की भट्टी में तपती हुई जुबानों का मस्सा नाजिल हो जाए, लोगों के बंधन और जुए टूट जाए, लोगों के दिलों पर चोट लगे, उनके रोकटे खड़े हों कि वाकई खुदावन की हजूरी जो है, उसका तख्त जो है, प्रस्तिश के वसीला से उसके लोगों के दरमियान लग चुका है। हालेलुया। दैट्स द स्टैंडर्ड गॉड गिविंग अस। बाप ऐसे परस्तार तलाश करता है जो उसके आगे झुकने के लिए तैयार हो चुके हैं और उसके साथ दोस्ती में भी कायम रह सकें। प्रस्तिश तो कर ही रहे हैं, खुदावन के आगे झुक तो रहे ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ, वो दोस्ताना है। वो डेली बेसिस पर दुआ में रखना में खड़े होते हैं, इल्तिजा मुनाजात करते हैं खुदावन के हजूरी में, और जो एक ईंधन है पाकरू का, उससे फिल होते चले जाते हैं। अगर वो बगैर ईंधन के जो है, बगैर पाकरू की आग को लिए हुए सिर्फ अपनी आवाज से या जो टैलेंट उनके हाथों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो उनकी जो प्रस्तिश है वो खुदावन के हजूर में कबूलियत नहीं करने वाली। आमीन। तो वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन अ स्पिरिचुअल वर्शिपर, परस्तार जो है हमदोसना करने वाले, और जो सिर्फ नाम के परस्तार हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि हकीकत में जो है खुदा के आगे झुकने से मुराद क्या है। लूका 7वें बाब की 37वीं से 50वीं आयत में हमें एक बड़ी जो है खूबसूरत मिसाल मिलती है, और जब मैं इस वाक़े को इमेजिन करती हूँ, आई कैन जस्ट सी माई सेल्फ इन अगर मैं रिप्लेस करूँ उस औरत को। यहाँ पर हमें एक बदचलन औरत की कहानी मिलती है जिसने यस्सु के पाँव को अपने आंसुओं से भिगोया। इस औरत की प्रस्तिश पर यस्सु के रद्दे अमल से हम समझ सकते हैं
कि उसने यस्सु की प्रस्तिश जो है किस अंदाज में की, जिसे यस्सु ने बहुत ही पसंद किया था। हम इस वाक्य से यस्सु की प्रस्तिश के बाबत क्या सीखते हैं? हमने देखा है कि वो औरत अपनी मर्जी से, फ्री विल से, बगैर किसी फोर्स से नहीं है। यहाँ पर हम इन ब्रॉड्स पर जो है लोगों को रिक्वेस्ट करते करते बाज को औकात थक जाते हैं। लोग कहते हैं इस भाई को मौका दे, इस बहन को मौका दे, मैं बाद में करूंगा। जब रूहुल कुद्स खादम के या प्रेसिडेंट के दिल में डाल रहा है कि आप प्रस्तिश करें, आपको कहा जा रहा है, दैट्स मीन कि यू आर रिजेक्टिंग द कॉलिंग, द टाइम जिसमें खुदा का पाकरू आपको यूज करने को था, आपने उस मौका को रिजेक्ट किया है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि ये वो जो औरत है, बदकार औरत, वो अपनी फ्री विल से जो है खुदा के आगे झुक गई है, और उसका झुकना उसे यस्सु से दोस्ती के मुकाम पर ले आया है। और वो कैसे झुकी है? अब झुकने के भी बड़े बड़े तरीके ना, जब हम जिम में जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, प्लाटे करते हैं, योगा करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, लोग बेंड होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल मायनों में हम देखेंगे कि रूहानी मानों में झुकने का क्या मतलब है। और उसमें पहला नुक्ता है कि शिकस्ता दिल के साथ जो है झुक जाना। 38वीं आयत में जो है लूका 7वें बाब की, कि वो यस्सु के आगे शिकस्ता दिल से झुकी और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव जो है आंसुओं से भिगोने लगी। हालेलुया, प्रेज जीसस। और ज़बूर नवीस भी लिखता है, ज़बूर 51 की जो है 17वीं आयत में, बड़ी फेमस आयत है, रेफरेंस है, कि दाऊद कह रहा है कि ए खुदा, तू शिकस्ता और हंसता दिल को हकीर ना जानेगा। हालेलुया, नीचे हालेलुया लिखे कि कितनी बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर में लिखी गई है हमारे लिए। ये एक तकवीयत की बात है कि अगर हम हंसता दिल हो जाते हैं, शिकस्ता दिल हो जाते हैं, झुक जाते हैं, आजिज हो जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, रिजेक्शन महसूस करते हैं, तो इन हालात में भी खुदावंद जो है हमें हकीर नहीं जानता। हमारी कदर जो है खुदावंद की नजर में बढ़ जाती है और हम यस्सु मसीह के दोस्त कहलाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो शिकस्ता दिल को पसंद करता है, वो ब्रोकननेस को पसंद करता है। आप खुदावंद के दोस्त बन ही नहीं सकते जब तक आप ब्रोकननेस को, टूटेपन को महसूस ना कर पाए, क्योंकि यस्सु मसीह भी हमारे लिए तोड़ा गया था, टूटा था वो हमारे लिए। हालेलुया। अक्सर हम अपने दिल में उस औरत की तरह एक तकरार की हालत पैदा किए रखते हैं, और इस तरह हम अपने दिल के इर्द गिर्द हुस्ताख्ता जो है दीवारें खड़ी कर लेते हैं, यानी कि हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। हमने अपनी ही वजूहात बना रखी होती हैं कि हम सब ने अपनी जिंदगी में ठुकराए जाने, बेचारगी, बीमारी, जज्बाती या गालियों जैसे तलहा तजर्बे किए होते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को आपने गालियां दी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने आपको गालियां दी हो। रिसेंटली मुझे भी किसी ने बहुत गालियां दी, बट I pray to God, give me heart to forgive that person। और ये खूबसूरत बात है, माफ़ी देना सबसे खूबसूरत अमल है। उस दर्द से अपने आप को महफूज रखने के लिए जो इन मुश्किल चीज़ों से पैदा होती है, हम अक्सर जो है अपने दिल के गिर्द तकरार की सी दीवार खड़ी कर लेते हैं, और ये एक तकरार घड़ रखते हैं। तकरार मीन दीवारें खड़ी कर लेते हैं हम अपने इर्द गिर्द जो है, और ये तकरार जो ये जो हम दीवारें बिल्ड अप कर लेते हैं, वो हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक होते हैं और बहुत सी तकलीफदार चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ले आती हैं। इस तकरार से ये जो दीवारें हम अपने दिल के गिर्द खड़ी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, वो बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में बदतरीन हालात पैदा कर लेती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हम पूरी तरह एहसास से खाली नहीं हैं, फीलिंग्स आर स्टिल देयर,
कुछ दर्द तो इब्तदा ही में घुस आते हैं, लेकिन बदतरीन तकरार को हम अपने दिल में इस तौर से रखते हैं, दिल की सख्ती को इस तौर से रखते हैं कि हम अपने आप को ही हर्ट किए जाते हैं, अपने सेहत को नुकसान पहुंचाए जाते हैं, अपने स्पिरिट को नुकसान पहुंचाए जाते हैं। दिल की सख्ती का, तकरार का नुकसान ये भी है कि खुदा की मोहब्बत और आदमियों की मोहब्बत जैसी कोई अच्छी चीज़ हमारी तरफ आती है तो वो भी उस तकरार की वजह से दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है? पंजाबी में मुहावरा है कि सप दा डसिया रस्सी तो भी डरदा वे। जब इंसान का दिल जो है टूटता है, इंसान टूटता है तो वो अपने दिल को सख्त कर लेता है, लेकिन उस सख्ती में वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को खो देता है जहां पर खुदावंद उसके अंदर हीलिंग को लेकर आना चाहता है, जहां पर खुदावंद उसे अपना प्यार दिखाना चाहता है, अपनी प्रेजेंस के वसीला से और अपने लोगों के वसीला से भी। तो इसी वजह से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने दिलों की सख्ती को खत्म करें, शिकस्ता और हंसता दिल को अपने अंदर लेकर आए, तभी हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले बन पाएंगे। हालेलुया। इब्तदा में बहुत थोड़ी मिकदार ऊपर तक आती है, लेकिन हम नाप तोल से मोहब्बत पाने के लायक नहीं है जो हमारी तरफ आ रही है। शिकस्ता होने से मुराद है कि उस तकरार को, उस दिल की सख्ती को अपनी मर्जी से खत्म किया जाए। कोई भी शख्स वो सख्ती आपके दिल से नहीं निकाल पाएगा। जैसे वो जो औरत है जिसने अपने आंसुओं से खुदा के बेटे के पांव को धोया, उसने अपनी मर्जी से इस एक्ट को किया था। इसी तरह हमने भी अपनी मर्जी से जो है अपने दिल की तकरार को, अपने दिल की सख्त को, अपने दिल में जो बड़ी बड़ी दीवारें हमने खड़ी कर ली हैं, उनकी गर्द को गिराना है, मस्मार कर देना है, चकनाचूर कर देना है और झुकना है। अपने मगरूरपन को, गरूर को जो है, प्राइड को जो है बर्रे की सलीब के आगे लेकर आना है, ताकि हम अपने खुद साख्ता तहफ्फुज़ को तोड़ें। हम समझते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नो, वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं जब हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं और अपनी जिंदगी के इस नाजुक मसला का सारा इख्तियार खुदा के हाथों में दे दें। नो मैटर किस भी सिचुएशन से, ट्रबल से, टेम्पटेशन से आप गुजर रहे हैं, सब कुछ खुदावन के आगे ले आए और फिर अपना ताल्लुक खुदा के साथ देखें, ना कि अपनी बनाई हुई दीवारों के पीछे कि हम उस तकरार को कैसे खत्म कर सकते हैं। मुआफ करने से हम खुद साख्ता दीवारें उस ज्यादती की वजह से खड़ी करते हैं जो हमारे साथ हो चुकी होती हैं। मुआफ करने से हम इन दीवारों की एक एक ईंट उखाड़ कर रख देंगे। अब ये भी आप सब जानते हैं कि मुआफ़ी देना जो है कोई आसान काम नहीं, और मैंने कुछ हादमीन को देखा भी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, कि हम कह देते हैं कि हमने मुआफ़ कर दिया है, बट स्टिल those things stuck in our mind। कुछ बातें हमारे दिल में स्टक होकर रह जाती हैं कि किस तौर से, किस मौका पर उसने ये बात मुझसे कही थी, कैसे उस शख्स ने, उस लड़की ने मुझे हर्ट किया था। लेकिन जो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है, जो कलामे मुकद्दस का कुलिया है, उसमें जब आपने किसी को मुआफ़ किया है तो ये एक बाकायदा अमल है, ये एक मश्क है, ये कंटिन्यू रहने वाला प्रोसेस है, जिसमें अगर आपने किसी को मुआफ़ किया है तो करते ही जाना है। हालेलुया। और जैसे कलाम मुकद्दस में हम लूत की बीवी का वाक़या पढ़ते हैं कि कलाम हमें इंकरेजमेंट देता है कि डोंट बी लाइक लॉट्स वाइफ। लूत की बीवी की तरह ना बनो जो पीछे मुड़कर जिसने देखा और नमक का सतून बन गई। इसी तरह जब हम किसी शख्स को मुआफ कर देते हैं, दिल से माफ कर देते हैं, अपने पीस के लिए, अपने दिल के इत्मीनान के लिए माफ कर देते हैं, देन यू शुड नेवर एवर कीप रिपीटिंग सेम हर्ट।
दैट्स मीन अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आपने उसको दिल से मुआफ नहीं किया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी को मुआफ ना करने की कुछ वजूहात हो सकती हैं, और आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं आया दैट्स राइट और रॉन्ग। राइट, तो जो पहला है उसमें वो महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ कि जो है मैं इसे मुआफ नहीं करना चाहती, बस अगर मैं आज भी यही करती हूँ तो मेरे जो महसूसात हैं, फीलिंग्स जो हैं वो रियाकाना है। दूसरा ये भी हो सकता, कुछ लोग कहते हैं कि मैं महसूस ही नहीं कर रही कि मुझे इसे मुआफ करना चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि बशर्ता के पहले मेरा मुजरिम मुझसे माफ़ी की दरख्वास्त करे तब मैं माफ़ी करूँगी या करूँगा। बहुत से लोग पहल नहीं करना चाहते माफ़ी करने में। और तीसरा जो है उसमें ये हो सकता है कि मैं मुआफ़ तो करना चाहता हूँ, मैं मुआफ़ तो करना चाहती हूँ, लेकिन जो है मैं सुलह नहीं करना चाहती, मैं दोबारा जो है उस शख्स से राब्ता नहीं करना चाहती या चाहता, मैं दोबारा उस पर भरोसा नहीं करना चाहती। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये वजूहात हो सकती हैं किसी को जो है ना मुआफ करना। मुआफ करना जो है सबसे पहले जो है बीइंग अ बिलीवर, ईमानदार और रास्तबाज होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और इससे खुदा की हम में जो है ताबेदारी नज़र आएगी, फर्मा बरदारी नज़र आएगी। जब हम किसी को मुआफ़ करते हैं तो हम इजहार कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के साथ ताबेदार हैं और वफादार हैं। इसलिए हम भी हर उस शख्स को माफ़ करें जिसने हमें सताया है। ये नहीं कि कोई हमसे माफ़ी मांगेगा तो हम उसे मुआफ़ करके उससे सुलह करेंगे, लेकिन उसको उसका एहसास दिलाना जो है दुरुस्त नहीं है। ये जो ताबे फरमानी का एक अमल है कि जब आप किसी को मुआफ़ करें तो फिर जो है नो फर्दर डिस्कशन, दैट्स अ डन डील। हालेलुया, नीचे हालेलुया लिखे ताकि मुझे पता हो कि आपको बात की समझ आ रही है। प्रेज जीसस। दैट्स अ डन डील कि जब आपने किसी को मुआफ़ कर दिया तो कर दिया। स्टॉप रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स एंड पैटर्न्स ओवर एंड ओवर अगेन। हालेलुया। ये सारे का सारा अमल हमारे महसूसात के लिए हो सकता है, फीलिंग्स के लिए हो सकता है, लेकिन जब हम ये नापने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से इस तकरार को बार बार ख़त्म करना चाहते हैं, तो जो हमारी फीलिंग्स हैं, महसूसात हैं, खुद बहुद हमारी मर्ज़ी के ताबे होते चले जाएंगे। एज आई सेड अर्ली के दैट्स अ प्रैक्टिस। किसी को मुआफ़ करना ये कोई ऑल द सडन नहीं हैपेंड होता, ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है, एक मश्क बन जाती है, रूटीन बन जाती है कि जब आप किसी को मुआफ़ करना सीख जाते हैं तो फिर वो आप करते ही चले जाते हैं। हालेलुया। सुलह के लिए आपको 2 फरीकीन और उनमें बाहमी रजामंदी की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था कि कुछ लोग मुआफ़ इसलिए भी नहीं करना चाहते कि वो दोबारा उन लोगों से राब्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन अगर आप किसी से सुलह नहीं करना चाहते तो दैट्स ऑलराइट, क्योंकि जो सुलह है, क्योंकि इवन दो कि बाइबल हमें इनकरेज कर रही है, मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, ठीक है, वो बाइबल उनको मुबारक कह रही है, लेकिन सुलह के लिए दोनों पार्टीज का जो है वो रजामंद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुआफ़ी के लिए दैट्स ऑल अबाउट यू। आपने अपनी पर्सनल चॉइस करनी है, ये फ्री विल है, और आपको उस शख्स को बताने की ज़रूरत भी नहीं कि आपने उनको मुआफ़ किया है या नहीं। दैट्स बिटवीन यू एंड गॉड। और अगर कोई फॉर यू पे भी हमें सुन रहा है तो आई हाईली इनकरेज यू कि आप ज़रूर जो है, अगर आपको मुश्किल है किसी को मुआफ़ करने के लिए तो ज़रूर मुआफ़ कीजिएगा। और ख़ुसूसन जो परस्तार हैं, जो खिदमत में है, मिनिस्ट्री में है, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है इनकसारी। उस औरत ने अपने बालों से यीशु के पाँव खुश्क किए हैं, लेकिन अगर उस औरत के बाल लंबे हैं, पहला कुरिन्थियों 15वीं आयत में, 11वें बाब की 15वीं आयत में, वहाँ पर लंबे बालों का हमें जिक्र मिल रहा है, तो क्या ये उसकी बढ़ाई है? क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो लंबे बाल तो उसे समेटने के लिए मिले हैं। ये इबारत 2 वजूहात पेश करती है।
जिसे पता चलता है कि ये अमल जो है जो उस औरत ने किया था वो आजिज़ी और इनकसारी थी। पहली बात तो यह है कि उस दौर की जो औरत है अपने बालों को डांप कर रखती थी, जो इस बात की अलामत थी कि वो मर्द की हिफाजत या इख्तियार में है। और यहाँ उस औरत ने अपने बालों को पब्लिकली जो है अवाम में खोला है और अपनी बदनामी का जो है उसने क्या किया, खतरा मोल लिया है। क्योंकि उस वक़्त ये रवाज था कि औरत सिर्फ अपने बाल अपने घर के अंदर पर्सनल जो एरिया है ख्वाबगाह में जो है वो खोला करती थी, या जो दूसरी सूरत में अगर वो फहाशा हो तो फिर खोल सकती थी। तो भी उसने इस अंदाज में यस्सु की प्रस्तिश की है, उसने यही तरीका मुनासिब जाना कि जिससे वो उसके लिए अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार कर पाती। अब सवाल ये उठता है और हम अब पूछते हैं कि हमें खुदा से कितने फासले पर रहकर प्रस्तिश करनी चाहिए, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और यस्सु से कितने फासले पर रहकर पूछेंगे कि उसकी क्या मर्जी है, कि वो हमारे बारे में क्या चाहता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रस्तिश में गैर जुबानें नहीं बोलना चाहते। प्रस्तिश में अगर उन पे पाकरू का मसा आता भी है तो वो फौरन जो है अपने कॉन्शियस को अवेक करते हैं और स्टॉप कर लेते हैं अपनी जुबान पर। लेकिन जब आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं तो बेसहातगी जो है रूहुल कुद्स का कंट्रोल आप पर होता है और आप अपने आप को रूहुल कुद्स की सपुर्दगी में देते हैं। फिर जैसे वो चाहता है आजिज़ी और इनकसारी के साथ वो आपको इस्तेमाल करता चला जाता है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि ये इनकसारी का अमल इसलिए था क्योंकि उसने अपनी इज्जत के साथ यस्सु के मैले जो पाँव हैं उनकी धूल को जो है साफ किया था, धोया था। उसने अपने बालों से ऐसा किया था जो उसकी अजमत और फख्र की निशानी थे। और उस औरत ने बहुत छोटा अमल किया और हकीर काम किया था लोगों की नज़रों में, लेकिन खुदावंद की नज़र में ये अमल एक बरकत का अमल था, क्योंकि वो बाल जो उसके सर का ताज थे वो उसने यस्सु के कदमों के नीचे और यस्सु के कदमों के पास ले आई। हालेलुया। और जब मैं इसको इमेजिन करती हूँ, इस सीनरी को, इस विजन को, तो मुझे वो गीत भी बड़ा अच्छा याद आता है कि जिसमें गाते हैं कि सब ताज यस्सु तेरे कदमों तले। हालेलुया, हालेलुया लिखें कि हमारी जिंदगी का हर एक फख्र जो है ड्यूरिंग द वर्शिप वो खुदा के बेब बर्रे के तख्त के आगे जो है आना चाहिए। हर एक ताज, जैसे हम कहते हैं we say कि our parents are our pride, our siblings are our pride, my ministry is my pride, my passion, my compassion is my pride। हर तरह का प्राइड फख्र जो है आपकी जिंदगी का वो खुदा के बेब बर्रे के तख्त के आगे आना चाहिए। तभी खुदावंद हमारे अंदर जो प्रस्तिश का दिल उसने रखा है उसको कबूल करेगा और हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना सिखाता चला जाएगा। हालेलुया। यशायाह 57 बाब की 15वीं आयत के मुताबिक है, लिखा है क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है और जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। हालेलुया। और यही आज हमारे शेयरिंग का सियाको सबाक भी था कि खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी के पानी को पिएं। खुदावंद चाहता है कि हम शिकस्ता दिल और फरोतन दिल हो जाएं अगर हम वाकई रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना चाहते हैं, रूह सच्चाई से प्रस्तिश के नजराने खुदा के हुजूर पेश करना चाहते हैं।
अगर हम मगरूरी की इसी हालत में रहकर ही और अपनी सलाहियतों पर भी यानी जो टैलेंट खुदा ने हमें दिए हैं, जो म्यूजिक को खुदा ने हमारे हाथों में दिए हैं, उस फखर को खुदा की प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो हम खुदा की हजूरी में धुकेल रहे हैं, तो हम खुदावंद की हजूरी को एक्चुअली जो है वो दूर कर रहे हैं अपने से। लेकिन अगर हम शिकस्ता दिली से, इनकसारी से उसे पुकारते हैं, तो वो हमें अपने पास खींच लेता है और हमारे साथ रहता है। शिकस्ता दिली और इनकसारी के बगैर प्रस्तिश ऐसे ही है जैसे मोहब्बत जो है बगैर इंतसाब के। वो औरत जज्बात में कम और प्रस्तिश करने में जो है वो ज़्यादा महफ थी। हमने भी इसी पैटर्न को अपने आगे रखना है, हालेलुया। और फिर एक और बात को भी हमने सामने रखना है। पहला पत्रस पहले बाब की 16वीं आयत के मुताबिक है कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। There's the standards, खुदावंद हमें स्टैंडर्ड्स दे रहा है कि एक परस्तार को कैसे होना चाहिए। उसे पाक भी होना चाहिए, उसे रास्तबाज भी होना चाहिए, उसे ईमानदार भी होना चाहिए, हालेलुया। तभी जब ये सारी ब्यूटीज एट्रीब्यूट्स जो है जो अच्छी बातें हमारे अंदर मौजूद होंगी, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और इस रिजल्ट के साथ मैं वाइंड अप करूंगी कि फिर हम जो है वो रूह कुद्स से मामूर होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया। और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल शादमानी से भर जाता है कि जो सच्चे परस्तार हैं वो सच्चाई और रूह से प्रस्तिश करते हैं, और हमें हकीकत में खुदा के रूह की ज़रूरत है ताकि हम उसके अंदर में जो है खुदा के रूह में रहते हुए प्रस्तिश करने के लायक हो सकें, ताकि हम उसे पसंद आ जाएं। अपने जहन से सिर्फ यही दरियाफ्त ना करते रहें कि हमने सिर्फ प्रस्तिश करनी है, अपने जज्बात का ख्याल करना है, अपने ख्यालात का इजहार करना है, बल्कि पहला करंथियों 2 बाब की 11वीं आयत के मुताबिक है कि हमें उसके रूह की, पाक रूह की जरूरत है। कुलसियों 3 बाब की 16वीं आयत में हमें इनकरेजमेंट दी गई है कि रूहानी गजलें गाने के लिए भी उसके रूह की, रूह कुद्स की हमें जरूरत है। वो गजलें, गीत जो रूह कुद्स से मिले हों और जो हमें गीतों और गजलों से अलग हों। गजल का मतलब है कि महबूब से बातें करना, खूबसूरत बात है। और जैसे हमने शुरू में सीखा है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में झुकते हैं तो हम एक दोस्ताना रवैया लेकर, फ्रेंडशिप का सा जो रवैया लेकर उसकी हजूरी में आते हैं। तो जब हम गज़ल भी खुदावंद के हजूर पेश करते हैं, गीत भी खुदावंद के हजूर पेश करते हैं, दसमीन कि हम अपने महबूब यीशु मसीह से, अपने दुल्हा राजा यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। याद रखें कि यीशु मसीह ही हमारा महबूब है, हालेलुया। और दर हकीकत पहले दर्जे की जो प्रस्तिश है, जो गीतों, साजों और नाचने से की जाए, कुछ नहीं है। प्रस्तिश का मतलब हर वो काम है हमारा, हर एक वो जो फेल है, हर एक जो वर्क हम जो अपनी जिंदगी से कर रहे हैं, जब हम संगीत की सूरत में उसे गाते हैं, नेमत की सूरत में खुदा के हुजूर पेश करते हैं, तो वो प्रस्तिश का सा अमल है। और जब हम रूह और सच्चाई से उसके हुजूर पेश करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रस्तिश का अमल जो है हम जारी रखते हैं, तो खुदावंद उस खूबसूरत गीत का जो नजराना है, जो तहरीरें हम लिखते हैं, कागजी तौर पर भी लिखते हैं, उनको तरतीब देते हैं, दुन्ने लिखते हैं, कोई भी अमल है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए किया जाता है, हमारा जो प्रस्तिश का नजराना है वो एक खूबसूरत तोहफा खुदावंद के हजूर जो है बखूर की मानिद कबूल किया जाता है, हालेलुया। और मेरी दिल से दुआ है, जितने भी हमारे यहाँ पर खादमीन मौजूद हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, परस्तार मौजूद हैं, इंटरसेसर मौजूद हैं, फारियू पे भी हमें सुन रहे हैं, जो कोई भी है जिसने नजात को हासिल किया है, खुदा हम सब के अंदर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाला दिल पैदा करते हैं। और आज हमने पैटर्न सीख लिया है कि हम कैसे रूह और सच्चाई से भर सकते हैं, हालेलुया। तो खुदावंद आज के कलाम की सारी शेयरिंग के वसीला से आपको और आपके घरानों को बहुत बहुत
ज़्यादा बरकत दे. God bless you all abundantly. Much love. God bless. Thanks a lot, Pastor Angel. God bless you abundantly. ये